Hello everyone. In this session, I am going to cover some other aspects, some other methods to do secular trend analysis. As in my previous session, I have covered graphical method and semi-averages method and related calculations we have already understood. Now in this session, I am going to cover these two methods, the moving averages and method of least square. So let's begin with moving average method. So it is a series of arithmetic means, variate values of a sequence. This is another way of drawing a smooth curve for a time series data. It means with the help of value derived by this method, we can also develop a smooth curve, which can also indicate whether there is an upward trend, downward trend, or there is a neutral trend. These kind of observations we can draw by doing this analysis, and it is more frequently used for eliminating the seasonal variations. So problem of seasonal variation we can easily eliminate with the help of this particular method, which is known as moving averages method. So let's go ahead with the calculation part, that how do we solve the problem related to the moving averages. So in this question, as it is given, calculate the 3-year moving averages for the loans issued by cooperative banks for non-farm sector or small sector scale industries based on the values given below. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको based on the given figures or the data, we have to calculate the 3-year moving averages. So there is a thing which you should be aware of, that जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3-year moving average you have to calculate. In some questions you will find 4-year moving average, 5-year moving average, 7-year moving average. So the questions can come in that manner also. So here in this question, I will be solving this question, discussing this question based on the calculation for 3-year moving averages as given in the question. So let's go ahead with the solution part. Now in this question, what we did, first we will tabularize them as it is given in the question. Now then what we do here, that we do the total of the values given. As we know, here it is given that we need to calculate 3-year moving average. So we will develop the group of 3 values all together. तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ हमने क्या किया, 41.82 प्लस 40.05 प्लस 39.12, हमने ये एक पहला ग्रुप बनाया है, और इसका जो टोटल होगा वो हम मिड वैल्यू के सामने यहाँ पर इसको हम मेंशन कर देंगे. यही वजह है कि यहाँ पहला कॉलम खाली है, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू आ नहीं सकती है. हम पहला जो ग्रुप बनाएंगे उसमें मिड वैल्यू 2005-6 ईयर ही होगा, तो यहाँ हमने इसका टोटल मेंशन कर दिया. सेकेंड ग्रुप कैसे बनाएंगे, हम पहले वाले को स्किप करके हम नेक्स्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं इन दैट मैनर. सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 3-year मूविंग एवरेज, हम अब पहले 2 को स्किप करेंगे, अगले 3 को लेंगे. सिमिलरली अब हम 3 को स्किप करके इन 3 का हम ग्रुप बना लेंगे. ऐसे ही हम इसको हम फॉर्म करेंगे, ये 3 का सेट हो जाएगा. देन 28.36 प्लस 33.31 प्लस 31.6, और जो लास्ट हमारा बनेगा 3 का पेयर, क्योंकि हमें 3 साल का मूविंग एवरेज बनाना है, तो वो होगा 33.31 प्लस 31.60 प्लस 36.48. तो इस तरह से हमने इन ग्रुप्स को डेवलप किया, और हमें सिंपल इनका केवल अगले कॉलम में इनका हमें टोटल को हमें मेंशन करते जाना. तो हमने पहले क्या किया, जैसा मैंने बताया, 41.82 प्लस 40.05 प्लस 39.12, तो हमने जो मिड ईयर था उसके सामने हमने इसका टोटल मेंशन कर दिया. अब अगला जो होगा सेट वो है 2005, 6, 6, 7 एंड 7, 8. तो इसमें आपका मिड ईयर कौन सा होगा, इट विल बी 6, 7. तो हम इन 3 का टोटल यानी कि 40.05 प्लस 39.12 प्लस 24.72, इसका टोटल ये जो आएगा 103.89, वो हम 6, 7 के सामने हम मेंशन करते हैं. इन दैट मैनर वी डू द टोटल ऑफ दीज years for solving the question by 3-year moving average. अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगले कॉलम में हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसका टाइटल हम लिखेंगे 3-year moving average. इसमें हमको ये जो वैल्यू हमने डिराइव की थी 3 साल की, हमने वैल्यू को ऐड करके इसको हमें डिवाइड 3 से कर देना, यानी कि
120.99 divided by 3. Similarly, 103.89 divided by 3. 90.53 divided by 3. In that manner, we will get 3-year moving averages for these 3 years moving total. So in that manner, we can easily solve the questions of 3-year moving averages. Now let's go ahead with the next one. Now in this question, what they have asked, compute the trends by the methods of moving averages. यानी हमें वही moving average को apply करना है, assuming that 4-year cycle is present in the following series. यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो हमारी सीरीज थी वो कितने साल की थी, 3 साल की थी. यहाँ पर जो सीरीज है वो इवन है, यानी कि हमें 4 साल का मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, यानी वी हैव टू अप्लाई 4-year moving average method. So how do we solve it? Let's go ahead with the solution part. So what we did here, first we have mentioned, as it is given in the question, these values, year and annual values we have already mentioned. Then what we do the total, यानी अब हमें यहाँ पर 4 साल का टोटल करना होगा. अब 4 साल का टोटल लिखने के लिए हमारे पास मिड वैल्यू क्या होगी, यानी कि दूसरे और तीसरे के बीच में हम इस वैल्यू को मेंशन करेंगे. यानी हमने क्या किया, 154.0 प्लस 140.5 प्लस 147.0 प्लस 148.5. अब इसका जो मिड होगा वो 2.5 होगा. अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास 4 वैल्यू हैं, तो हमें इन 4 के बीच में इसको लिखना होगा, यानी दूसरे और तीसरे के बीच में हमें ये वैल्यू मेंशन करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन. द सेकंड ग्रुप विल बी 140.5, 147, 148 एंड 140.9. तो इसमें सेकंड और थर्ड कौन सा है, 2000 एंड 2001. तो जो इनका टोटल आ रहा है वो है 578. इसको हमने 2000 और 2000 के मिड में हमने इसको मेंशन कर दिया. सिमिलरली अब हम ऊपर के दो छोड़ के नया ग्रुप बनाएंगे 4 का, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू 2003. इसमें जो आपकी मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2001 और 2002 के बीच में हमें वैल्यू लिखनी होगी. तो हमने यहाँ पर इसके टोटल को 580.50 को हमने मेंशन कर दिया. इन दैट मैनर वी मेंशन 4-year मूविंग टोटल. इसके बाद हमें इसका सेंटर्ड टोटल हमें कैलकुलेट करना होगा. हाउ डू वी कैलकुलेट सेंटर टोटल, यानी कि हमें अब इन दो वैल्यू को ऐड करते जाना है. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट वी नीड टू डू, 590.0. अब हमें सेंटर्ड टोटल का हमें एक नया कॉलम बनाना है जिसमें हमें वैल्यूज को ऐड करना है. सो व्हाट वी डिड, 590 प्लस 578.9, द टोटल विल बी 168.9. यानी अब हम इन दो टोटल के बीच में इस वैल्यू को मेंशन कर देंगे. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इसके बाद अब हमें क्या करना है, फिर एक नया पेयर बनाना है. अब हम पहले को स्किप करके हम इन दो का पेयर बनाएंगे, फिर हम दो को स्किप करके हम इन दो का पेयर बनाएंगे, फिर हम स्किप करके 570.1 प्लस 564.3, देन 564.3 plus 567.1. In that manner again we will do the clubbing of these value to get the centered total. अब जैसा हमने पहला किया था 590 प्लस 578.9 1168, अब हम 578.9 प्लस 580.5 को भी हम मिड में हम इसको मेंशन कर, इन दोनों के बीच में हमें इस टोटल को मेंशन करना होगा. इसके बाद 580.50 प्लस 570.1, इसको भी हमने यहाँ मिड में हमने इसको मेंशन कर दिया. इस तरह से हमने सेंटर्ड टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमें आगे क्या करना है इसके, दैट वी हैव टू डू द डिवीजन बाय 8 फॉर ऑफ दिस वैल्यू 1168.9. यानी हमने क्या किया, जो हमने टोटल किया था 1168.9, 1159.4, 1150.6, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है. अब 8 से इसको डिवाइड करने का रैशनल क्या है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पहले 4 साल का मूविंग एवरेज निकाला था, ये सारी वैल्यूज हमारी आई थी. फिर हमने 4 साल के दो मूविंग एवरेज का सेंटर्ड टोटल किया है. यानी एक तरह से हम देखते हैं
तो हमारे पास 8 साल का टोटल डेटा आ गया 1168.9। इसलिए हम इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि हमने जो पहला वैल्यू निकाली थी 590.0, ये हमारा 4 साल का मूविंग एवरेज था। अगले 4 साल का जो मूविंग एवरेज था वो था 578.9। इस तरह से जो हमारा ये जो टोटल है 1168.9, इट इज फॉर 8 ईयर्स, यानी कि 4 साल पहले, उसके बाद जब हमने 1 साल स्किप करके अगले 4 साल का लिया, इसलिए ये वैल्यू हमारी यहाँ पर 8 आई। हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, द वैल्यू विल बी 146.11। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वैल्यू 1159 डिवाइड 0.4 डिवाइड बाई 8, we will get 144.93. Similarly 1150.6, again we divide by 8, the value will be 143.8. So in that manner we get this 4-year moving averages. So I hope this concept of moving average is quite clear. Now we move to the next, which is method of least square. So what is this method of least square? We just go ahead with the slide first, the content. This method is mostly widely used in practice, and in this method, the sum of squares of deviations of the actual and computed values is least, and hence the line obtained by this method is known as the line of best fit. यानी हम इस मेथड में लाइन ऑफ बेस्ट फिट को कैलकुलेट करते हैं। एंड I would like to tell you that in my previous session, for which I have also mentioned the link, and the title of that lecture is regression analysis by method of least square। यानी कि ये जो method of least square है वो regression का भी part होता है, which is also used for doing trend analysis। ये हम पिछले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज रेफर माय प्रीवियस सेशन टाइटल्ड ऑर्डर with regression analysis by method of least square. So the related calculations I have highlighted, I have explained in that particular session. So for more updates, for more knowledge of business statistics, please like, comment, subscribe and share my YouTube channel, Management Study by Aniruddha Vijay. Thank you so much.